Hello students, today we will understand the relation between the angular velocity and linear velocity, that is v and omega. Okay. अब when a particle is performing circular motion, so इसका velocity हमको कैसा मिलेगा? The velocity is always along the tangent to the circle at that point. Okay, इस velocity हमेशा कैसे किस direction में होगी? It is along the tangent. So यहाँ पे से वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ होगी v2, यहाँ पे वेलोसिटी v3 है, यहाँ पे वेलोसिटी v4 है. ओके, सो अगर इसका स्पीड सेम भी रहता है, इवन इफ द स्पीड इज सेम, इवन देन द डायरेक्शंस आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, सो इसीलिए सर्कुलर मोशन में the speed of the particle may be same, but the velocity will never be same. Why? Because velocity, as you are aware, is a vector quantity. So it has a magnitude, it has a direction. So even if the magnitude remains same, the direction is different at different points. Therefore, इसका velocity हमेशा different रहेगा at different points. Okay. लेकिन speed can be same. अगर speed same रहता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं uniform circular motion. Okay. If the speed of the particle performing circular motion remains constant, तो इसको हम लोग बोलेंगे uniform circular motion. Now, you know that if a particle is present here at time t is equal to 0, and then at time t is equal to t, suppose the particle moves here. So this radius vector or position vector of this particle is describing an angle of theta at the center. So ये जो linear displacement रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो arc describe करता है, this arc S is equal to what? Radius multiplied by theta. दोनों साइड्स में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ds by dt. This is equal to r is constant because it is the radius, and this is d theta by dt. ds by dt is what? It is the velocity v, linear velocity. This is equal to r into what is d theta by dt? We had discussed yesterday only, कल ही हमने discuss किया. d theta by dt is what? It is the omega. So the relation between linear velocity and angular velocity is v is equal to r into omega. v क्या है? Linear velocity. r is the radius and omega is the angular velocity of this particle performing circular motion. Clear? या फिर omega is also equal to what? v upon r. So ये फार्मूला हम लोगों को काफ़ी काम में आएगा. कल हम लोगों ने 2-3 फार्मूले देखे थे, जैसे t is equal to 2 pi by omega, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ. ओके, उसी के साथ में ये भी याद रखना है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, या तो फिर ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय आर. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन. अब अगर पार्टिकल इस टाइप से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो हम लोग सीधा सीधा ये फार्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. ओके, एक आध प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर लेते हैं. Calculate omega, that is angular velocity, when r is equal to 2 meters and velocity of the particle at a given time, that is equal to say 8 meter per second. Okay, ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे? You know this relation, v is equal to r into omega. Find out क्या करना है? Omega. So omega is equal to v divided by r. What is v? v is 8 meter per second. What is r? r is 2. So this is 4 radian per second. Clear? सीधा सीधा फॉर्मूला में डालेंगे. So you will get the value of angular velocity. Now if omega of the particle performing circular motion is 10 radian per second and radius of the circle is 1 meter or 2 meters, then
find what is the linear velocity of that particle. Okay, now linear velocity और angular velocity के बीच में relation क्या है? V is equal to r into omega. You just put the values. R is what, 2 meters and omega is what, 10 radian per second. So this is 20 meter per second. This is what, this is the linear velocity. So जो भी दिया होगा accordingly हम लोग calculate करेंगे. Okay, by using this formula. चलो, अब अगर इस टाइप का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं. हम लोगों ने बोला है कि भाई ओमेगा फाइंड आउट करना है तो v डिवाइडेड बाय ये r करेंगे. बट अगर एक हद पार्टिकल है जो इस टाइप के कर्व्ड पाथ से मूव कर रहे हैं, ओके, नाउ यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये तो इट विल बी अलोंग द टैंजेंट टू दिस, सो टैंजेंशियली ये वेलोसिटी होगा इसका. ओके, नाउ इसको यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है. ओके, सो अभी हम लोगों को इसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. क्यों? क्योंकि से ये जो है दिस इज लाइक अ कर्व, सो इट मस्ट बी पार्ट ऑफ सम सर्कल. ओके, इसका मतलब क्या है, इसको एंगुलर वेलोसिटी होगा. ओके, अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर इस टाइप के पाथ में पार्टिकल चल रहा है तो वहां पे अगर हम लोगों को ओमेगा फाइंड आउट करना है तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r, उसमें v कौन सा v होगा? v विल बी v परपेंडिकुलर. मतलब क्या है, ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग जो भी ऑब्जर्वर जहां भी बैठा है, से यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस वेलोसिटी के वी विल फाइंड आउट टू कंपोनेंट्स. ओके, एक कंपोनेंट कौन सा होगा? दिस विल बी अलोंग this line. Clear? So one component will be along this. Suppose the observer is observing from here. So एक component होगा which will be along this. इसको हम लोग बोलेंगे v parallel. Okay, और दूसरा component होगा which will be perpendicular to this. इसको हम लोग बोलेंगे v perpendicular. So omega find out करते समय हम लोग क्या करेंगे? We will find out v perpendicular and we will divide this by distance from the observer. Okay, so v perpendicular find out करेंगे और observer से उसका जो distance है उससे divide कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? we will get omega. Okay. Let us solve one problem. Suppose एक vehicle है, ये इधर मूव कर रही है. Okay, this is moving in this direction at the velocity of 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इधर जा रही है. So ऑब्जर्वर अगर यहाँ है तो उसके लिए ये जो वेलोसिटी है ये कैसी वेलोसिटी है? This is the perpendicular. ये इसको तो परपेंडिकुलर ही है. इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो सीधा सीधा ये जो भी वेलोसिटी है इसको हम लोग इस ऑब्जर्वर से जो भी डिस्टेंस रहेगा, इफ डिस्टेंस इज 1 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को ये जो डिस्टेंस है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे. सो v इज व्हाट, 2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है 1, सो दिस विल कम टू 2 रेडियन पर सेकेंड. ओके, अब ये व्हीकल यहाँ चली गई है. अब इस ऑब्जर्वर से ये जो वेलोसिटी है ये तो टेंजेंशियल नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है. ओके, सो इसका मतलब अब इस वेलोसिटी को हम लोग नहीं ले सकते. ये वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, v बराबर है, इधर है. बट हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को तो v परपेंडिकुलर चाहिए. क्लियर? सो हमको क्या करना होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना होगा. ये जो कंपोनेंट है दिस इज v पैरेलल एंड ये जो कंपोनेंट है ये क्या है? v परपेंडिकुलर. अब दिस इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. नाउ सी हियर, यहाँ से ज्योमेट्री थोड़ा करेंगे. इफ दिस इज थीटा,
दिस मस्ट बी थीटा। क्लियर? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए बाय ज्योमेट्री। सो अगर ये थीटा है सो देन ये कंपोनेंट क्या होगा, v cos ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, v sin ऑफ थीटा। So then omega will be equal to what? This will be equal to v perpendicular divided by the distance from the observer. So now what is v perpendicular? This is equal to v cos of theta divided by ये distance. Now if this is 1 meter and हम लोगों को तो ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। So अगर इससे हम लोग cos of theta लेंगे, see cos of theta will be equal to what? Cos theta is adjacent side, that is 1 meter divided by hypotenuse, जो कि हम लोगों को चाहिए। Okay, so therefore d will be equal to what? 1 upon cos of theta, that is sec of theta. Okay, so इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 upon cos of theta. So then this will be equal to what? v into, ये ऊपर चला जाएगा, cos square of theta, नीचे तो 1 ही है। ओके, सिंपली वैल्यू रखेंगे, वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकंड इनटू cos square of theta, जो भी थीटा का वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू रख देंगे। सो यू विल गेट व्हाट, ओमेगा। क्लियर? सो ओमेगा फाइंड आउट करते समय हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, जो भी वेलोसिटी रहेगी उसका v परपेंडिकुलर, इसका कंपोनेंट जो कि इसको परपेंडिकुलर है, एंड देन दिस डिस्टेंस, क्लियर, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ऑब्जर्वर से डिवाइड करेंगे। सो यू विल गेट व्हाट, ओमेगा। अब इसमें देखिए दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, ये v पैरेलल, v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, ये इसको सर्कुलर सर्कुलर डायरेक्शन में रख रहा है, सर्कुलर मोशन में रख रहा है, और ये क्या कर रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये डिस्टेंस को वैरी करता जा रहा है, डिस्टेंस को बढ़ाता चला रहा है। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी यूज दिस कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग आउट ओमेगा बाय यूजिंग v परपेंडिकुलर। ओके, लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। Suppose this is one wall, इस वॉल को यहाँ पे एक हमने रॉड लगा रखा है, this is a rod और CD जो भी बोले। Clear? This is point A, this is point B। अभी ये CD क्या कर रही है, ये रॉड क्या हो रहा है, ये नीचे आता है। जब ये नीचे आएगा तो ये इस तरफ मूव करेगा। Now suppose this point is moving at a velocity of say 10 meter per second. Clear? So इसका मतलब ये भी नीचे आ रहा होगा। अब ये तो एक रिजिड बॉडी है, हम लोगों ने कंस्टेंट मोशन में देखा कि भाई वेलोसिटी along the component of velocity along the length must always be same। तभी ये बॉडी रिजिड है, इसीलिए इसका मतलब ये कंडीशन इसमें फॉलो करना ही चाहिए। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज va इस डायरेक्शन में। अभी ये जो vb है, पॉइंट b, ये तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, हियर लाइक दिस। ओके, एट अ वेलोसिटी ऑफ vb। नाउ दिस एंगल इज गिवन, से दिस इज 37 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज से 53 डिग्रीज। Clear? अभी we are asked to find relative velocity find out करने को बोल रहे हैं, ओमेगा ए बी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर? अब ये फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, v ए बी कौन सा वाला, परपेंडिकुलर। Okay, VAB perpendicular divided by the distance। Clear? तभी हम लोग ये find out कर सकेंगे कि भाई what is the relative angular velocity। Now इसमें let me check if anything else is also given।
the length of this rod, it's say L. Clear? Now see, how can we solve this? See, this is the VA. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे. कौन से कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे? एक तो ये कंपोनेंट हो गया, दिस इज व्हाट, V पैरेलल. ओके, और ये जो कंपोनेंट रहेगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, V परपेंडिकुलर. बराबर. अब इफ दिस इज 53 देन दिस मस्ट आल्सो बी 53. इसका मतलब ये जो V पैरेलल है, ये क्या है, दिस इज VA इनटू cos ऑफ 53. और ये कंपोनेंट V परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, VA इनटू sin ऑफ 53. क्लियर? सिमिलरली अगर ये VB है तो हम लोग इसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे. एक तो वो कंपोनेंट जो इसके अलोंग होगा, इसको हम लोग बोलेंगे V पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट होगा दिस इज V परपेंडिकुलर. अब यहाँ से इफ दिस इज VB, ये क्या होगा, V पैरेलल क्या होगा, VB इनटू cos ऑफ 37, और ये कंपोनेंट क्या होगा, VB इनटू sin ऑफ 37. ओके, सो अभी हम लोग कंस्टेंट से जानते हैं कि ये जो कंपोनेंट है अलोंग द लेंथ, दे मस्ट बी सेम बिकॉज दिस इज अ रिजिड बॉडी. इसका मतलब ये कंपोनेंट देखिए, VB cos ऑफ 37 must be equal to, ये क्या है, VA cos of 53. constant motion में हम लोगों ने पढ़ा था ये. So therefore VB cos of 37 as you know is 4/5. This is equal to VA into cos of 53, that is sin 37. This is equal to 3/5. Okay, so ये तो cancel हो जाएगा. So VB is equal to 3/4 of VA. Clear? ये रिलेशन हम लोगों को मिल गया. VB is equal to 3/4 of VA. Now, what we want to find out is what is VAB. Okay. Now VAB कौन सा? VAB perpendicular. Now this is equal to what? VB perpendicular minus VA perpendicular. Okay. Now what is VB perpendicular? VB perpendicular क्या है? This is this one. ये कितना है? VB perpendicular is VB into sin of 37. So this is VA के टर्म्स में भी लिख पाएंगे हम लोग. Okay. या फिर सी VA is given 10 मीटर पर सेकेंड. So इससे हम लोग डायरेक्टली VB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 3/4 into 10. So this is 30/4 मतलब 15/2. There 15/2 मीटर पर सेकेंड VB का वैल्यू हमारे पास है. So then VB perpendicular क्या होगा? See what is VB perpendicular? ये वाला. So this is equal to what? VB that is 15/2 into sin of 37 that is 3/5 minus VA